structuralism. We talk about the assumptions of structuralism. We talk about the origin of structuralism, and we got a brief introduction of structuralism. And we also talked in my last class how structuralism uh, is being influenced by Marxism. We have, in my last class, we have also talked about how apparently superficially structuralism is having some resemblance, similarities with realist and neo-realist and liberals as well. And we also talk about why structuralism is called neo-Marxism and why it is called scientific Marxism. So these were the things that we learned in my last class. And as I told you in my last class, the origin of structuralism is all about the influence of Marxism on structuralism. Since it is heavily being influenced, this theory is heavily being influenced by Marxism. So we also talked in my last class what are the basic philosophy ideas of Karl Marx which are still having their relevance, to international relations, and how structuralism is having its foundation on the basis of on those important concepts. In my last class, we talked about the mode of production. I told you that the mode of production है, Karl Marx is of the opinion के organization of economy and economic relations are called the mode of production, and mode of production जो होते हैं, they laid the very foundation economic base of society. They usually lay down the foundation of material base or economic base of society. अब I also told you in my last class के जो structuralism जो है, it is basically a critique of capitalism, and Karl Marx was of the opinion that the capitalist system is basically based on two principles. One principle is called the right to own property, and the second principle is called the pursuit of profit. Pursuit of profit कैसा है? I also told you in my last class, मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्ल मार्क्स ने अपनी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को डेवलप किया. Labor theory of value is basically based on two principles. One is called the exchange value, the other is called the surplus value. Exchange value is basically उसने बताया था कि exchange value of any good or service is basically the price, and price is basically being made by the, वो कह रहे थे कि by human labor. जितनी human labor उसके अंदर होती है उतनी वो चीज़ refine होती है, उतनी उसकी price ज़्यादा होती है. और surplus value is basically the difference between what is basically being produced by workers and what is in return is being paid to them. The difference between what is actually being produced and what in return is being given to them, ये surplus value, इसको capitalist profit का नाम देते हैं. अच्छा, और फिर we also talk about के how capitalists they are going to accumulate, profits. उसके लिए उन्होंने बताया था कि they continuously drive down the wages. वो मसलसल जो लेबर होती है उनकी जो तनख्वाहें होती हैं उनको वो कंटिन्यूसली कम करते हैं in order to gain more profit. अल्टीमेटली जब लोगों को कम देंगे और अच्छी चीज़ें पैदा होंगी तो वो दोनों के दरमियान जो सरप्लस वैल्यू का डिफरेंस है वो बढ़ता चला जाएगा और प्रॉफिट इंक्रीज होता चला जाएगा. एंड वी आल्सो टॉक अबाउट के लास्ट क्लास उसने बताया था कि जो ये नई मार्केट्स की तलाश में जाते हैं वहाँ पे अपनी चीज़ों को बेचते हैं और वहाँ से सस्ते रॉ मटेरियल्स लाकर उनको दे कन्वर्ट देम इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स. दो चीज़ें हो गई. और तीसरी चीज़ ये है कि and if within industry or within economic sector the wages they are going to increase or the labor class is not going to reconcile with the demands of the owner or boss, then they do what? They bring new technology to replace human labor. Human labor के अंदर people get tired, people get sick, people have to go for break, water and etc. इस तरह के बहाने होते हैं human labor के पास. But machines they work 24/7. This is how they create more profit.
यहाँ तक हमने लास्ट बातें की थी, और इसके साथ एक जो वो भी उसको देखते हैं। तो मुझे ये बताइए, यहाँ तक आपको ये सारी बातें समझ आई हैं? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बच्चों, ये थ्योरी बहुत मुश्किल है, इसमें आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग मुझे चाहिए। तो आप लोग मुझे बताइए कि ये चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही आपको? हेलो? ओके, ऑल ओके? कुछ बात कहना सर चाह रहे जी, हो जी? सर वो आपने बेस और सुपर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था, वो वो समझ पढ़ाते नहीं हैं, आई थी मुझे, वो बताते कैसे हैं। रिपीट कर। मैं बताता हूँ। पहले ये बताओ कि यहाँ जी तक जो हमने चीजें पढ़ी थी वो सारी क्लियर है? जी सर, क्लियर। ओके, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद जो असल जो बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर लास्ट टाइम हमने रुके हैं, मैंने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स वाज ऑफ द ओपिनियन के ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी या इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी से क्या मुराद है? द वेज द इकोनॉमी इज गोइंग टू बी मैनेज्ड, एंड इकोनॉमिक रिलेशंस द कंडीशंस अंडर विच, मींस द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के दरमियान की जो कंडीशंस हैं, किन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है कि वो काम करेगा और वो उसको पैसे देगा। उसने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक रिलेशन दे लेड द वेरी फाउंडेशन इकोनॉमिक बेस ऑफ सोसाइटी। इकोनॉमिक बेस यानी कि कार्ल मार्क्स इज ऑफ द ओपिनियन के जो इकोनॉमी है वो किसी भी सोसाइटी की बुनियाद है। सोसाइटी के अंदर क्या होते हैं? दे गार्ड देयर, सोसाइटी के अंदर सोशल रिलेशंस होते हैं, कल्चरल रिलेशंस होते हैं, देयर यूज्ड टू बी पॉलिटिकल रिलेशंस, लीगल रिलेशंस, उसके साथ रिलीजियस रिलेशंस होते हैं। कार्ल मार्क्स इज ऑफ द ओपिनियन दैट कि इकोनॉमी जो है ये प्रोवाइड करती है बेस, फाउंडेशन प्रोवाइड करती है सोसाइटी की, जिसके ऊपर सोसाइटी के सारे दूसरे रिलेशंस में चलना होता है। तो उसको वो कहता है कि इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक रिलेशंस दे प्रोवाइड द फाउंडेशन, इकोनॉमिक बेस टू सोसाइटी। तो वो इकोनॉमिक बेस है जिसको कार्ल मार्क्स वाज ऑफ द ओपिनियन कि ये सब स्ट्रक्चर है। लेकिन सोसाइटी के अंदर अब सिर्फ इकोनॉमी तो नहीं है कि एवरीबॉडी इज इन द कंटीन्यूअस फ्लक्स ऑफ अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट डे एंड नाइट, नहीं। उसके कोई सोशल फैमिली रिलेशंस भी हैं, उसके सोशल रिलेशंस हैं। ह्यूमन बीइंग्स के सोसाइटी के अंदर वो जब काम करते हैं, दे हैव टू फेस सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, लीगल रिलेशंस हैं। while living within the society they have to go for power sharing, उसके लिए वो पॉलिटिकल रिलेशन से भी इम्पैक्ट होते हैं। सो कार्ल मार्क्स कहता था, कार्ल मार्क्स वाज ऑफ द ओपिनियन के वो जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक बेस है, वो सपोर्ट करती है ह्यूमन बीइंग की सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल और सोशल रिलेशंस। जैसा कि पॉलिटिकल रिलेशंस क्या है? स्टेट की वर्किंग, स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन। लीगल रिलेशंस क्या है? वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के वो लॉ एंड ऑर्डर को क्रिएट करते हैं। उसने कहा, कार्ल मार्क्स वाज ऑफ द ओपिनियन कि ये जो स्टेट के रिलेशंस हैं, कोर्ट्स हैं, चर्च है, फैमिली है, एजुकेशन सिस्टम है, ये और जो मीडिया चल रहा है, ये सारे के सारे जो रिलेशंस हैं ये सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं। बेस, फाउंडेशन इकोनॉमिक बेस है, ये सपोर्ट करती है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस। और ये जो दूसरे रिलेशन हैं सोसाइटी के, इसको सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। बोथ आर इंटरकनेक्टेड, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, बट बोथ गॉट देयर डिफरेंट अप्रोच। दोनों डिफरेंट हैं लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो वो क्या कहता है? सुपर स्ट्रक्चर जो है, जो ये जो इकोनॉमिक बेस है, base determines society's other relations and ideas which are described at its superstructure, जैसे कि कल्चर्स है, इंस्टीट्यूशंस हैं, पावर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, रिचुअल्स हैं, स्टेट वगैरह वगैरह है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है? इकोनॉमी, सोसाइटी की, जिसके ऊपर पूरी सोसाइटी की बुनियाद रखी जानी है, वो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं। अब वो इकोनॉमिक इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी ने सोसाइटी की बुनियाद रखती। अब उस बुनियाद के ऊपर सोसाइटी में सिर्फ इकोनॉमी तो नहीं है, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, इकोनॉमिक, रिलीजियस, सारे रिलेशंस हैं। इसको उसने सुपर स्ट्रक्चर कहा। वो कहता है जैसी इकोनॉमी होती है वैसा सुपर स्ट्रक्चर होता है। अब मैं आपको मिसाल देके बताता हूं। एक जमाने के अंदर ट्राइबल सिस्टम था। ट्राइबल सिस्टम के अंदर मोड ऑफ प्रोडक्शन हंटिंग था। हंटिंग हंटिंग हुआ करती थी वहां पर। और लेकिन स्ट्रक्चर उसका कौन सा था? सुपर। तो हंटिंग को सपोर्ट करने के लिए एक ट्राइबल लीडर होता था। उसके बाद एग्रीगेरियन सोसाइटी आई। एग्रीगो मोड ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर था, लेकिन उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से थे? फ्यूडलिज्म के थे। अब हम इंडस्ट्रियलाइज सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के अंदर रह रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ये हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन है, और इसको सपोर्ट करने के लिए कैपिटलिस्ट सिस्टम ने
जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसने अपना ये बोर्जी क्लास, रिच क्लास को प्रोटेक्ट करने के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। तो जैसा मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा वैसा ही सुपर स्ट्रक्चर होगा। बच्चों ये बात समझ आई है? वहाज ये बात समझ आई है? क्यों वहाज? जी सर आ गई है। जी सर। हाँ, तो बेस और सुपर स्ट्रक्चर बोथ डिफरेंट है लेकिन दे सपोर्ट ईच अदर। ओके गाइस, जी ये सर। सारी बातें हमने जो की हैं, उसके बाद ये अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई हैं तो बहुत जबरदस्त बात हो गई है। कार्ल मार्क्स क्या कहता था? कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि अच्छा, ये दो तीन लोग और भी थे जिन्होंने ये जिस तरह फंक्शनलिज्म के अंदर दुर्खाइम है, फंक्शनलिज्म के अंदर दुर्खाइम का ये कहना था कि सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशंस आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये दुर्खाइम ने भी ये बात की थी जो कार्ल मार्क्स ने बात की है, ये यहाँ आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, वो आप लोग देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को दो चीजें समझाई हैं। पहला कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म क्या है कि इकोनॉमिक रिलेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल रिलेशंस। ठीक है जी, इसको कहते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म इसको कहते हैं। दूसरा है हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म। हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है, जरा इस चीज को समझ लीजिएगा। हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म का मतलब ये है कि ये जो इवेंट्स हैं जो दुनिया में हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये हिस्टोरिकली प्री डिटर्मिन्ड है। और जो हो रहा है वो एक प्री डिटर्मिन्ड सीक्वेंस के जरिए हो रहा है। वो मिसाल देके बताता है, कहता पूरी दुनिया के अंदर जो सिविलाइजेशन थी, इट स्टार्टेड विद ट्रैवल फ्रॉम द प्रिमिटिव एज। प्रिमिटिव एज से किया जहां पे कम्युनिज्म था, सारे लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते थे हर चीज अपनी। और प्रिमिटिव कम्युनिज्म से दुनिया राइज करती हुई एग्रीगेरियन सोसाइटी में आई, एग्रीगोरियन सोसाइटी से फ्यूडलिज्म में गई, फ्यूडलिज्म से दुनिया कैपिटलिज्म में गई, अब दुनिया कैपिटलिज्म से सोशलिज्म में जा रही है और सोशलिज्म अल्टीमेटली फिर दोबारा कम्युनिज्म की तरफ जाएगी। तो ये जो इवेंट है, कार्ल मार्क्स का कहना है कि ये जो अनफोल्ड हो रहे हैं ये प्री डिटर्मिन्ड सीक्वेंस के जरिए हो रहे हैं। और ये जो कैपिटलिज्म है, it is not going to survive. This whole system is basically composed of inner contradictions. और ये सिस्टम हैज टू कोलैप्स। इस सिस्टम ने कोलैप्स होना है। इस सिस्टम ने कोलैप्स होना ही होना है, हर सूरत हर कीमत पे होना है इस सिस्टम ने। और इस वजह से फिर दुनिया दोबारा कम्युनिज्म की तरफ जारी हो गई। ये दो कॉन्सेप्ट समझाए मैंने आपको, हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म और इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। कोई बात अगर इसमें नहीं समझ में आई, लेट मी नो, मुझे बताइए प्लीज बेटा, अगर बात कोई समझ में नहीं आई तो। ये आईडीज क्यों शेयर हो रहे हैं? क्यों भाई? हुज़ैफा, अहमद अली, अटेंडेंस के लिए कर रहे हैं, आपने कहा है ऐसे? ये लोग आए हुए हैं, सिस्टम के अंदर ओ हैं। सर जी आए हुए हैं। सिस्टम में है तो पैकेज खत्म था, पैकेज कराने गया तो अभी आया हूँ। अटेंडेंस आप ऐसे ले रहे हैं सर? आईडीज चाहे हाँ, ये ऑटोमेटिकली सेव होनी है और प्लस मैंने स्क्रीनशॉट्स लेने, पहले 10 मिनट में मैंने जो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं उनके ऊपर होनी है, उसके बाद नहीं होनी। ओके गाइस, अच्छा ये दो जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, इसको आगे देखते हैं, आगे चलते हैं बेटा। और उसके बाद और प्राइवेटली मैसेज ना किया करें, ये बुरी बात है, क्योंकि मैंने शो कर दिया हुआ कौन क्या किसको क्या कह रहा है तो मुझे पता चल जाता है, इसलिए आप अपनी इज्जत को बहाल रखें। आगे चलते हैं बेटा। ये जो दो कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को समझाए हैं, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म और डिटर्मिनिज्म के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिटर्मिनिज्म, हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म, ये चीजें बताने के बाद नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द वेरिएशंस विद इन वेरिएशंस। आइए स्क्रीन शेयर करूंगा मैं आपके लिए। वेरिएशंस विद इन स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको वेरिएशंस वेरिएंट्स कहते हैं इसके। Okay guys, variations guys, variants, इसके basically there are three main variations, three main variants। पहला है डिपेंडेंसी थ्योरी,
डिपेंडेंसी थ्योरी, जिसको डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस भी कहते हैं। दूसरी है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, एंड थर्ड इज दी स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ इंपीरियलिज्म। अच्छा जी, अब डिपेंडेंसी थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। इसके 3 वेरिएशंस हैं। ये मैंने आप लोगों को अभी तक पहले ये समझाया है कि ये मार्क्सिज्म है क्या, मार्क्सिज्म कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस को, और स्ट्रक्चरलिज्म के 3 में वेरिएशंस हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी इज बेसिकली बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन इसका वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट था, इससे इन्फ्लुएंस हुए थे। व्लादिमीर की एक बुक थी जो बहुत दुनिया के अंदर मशहूर हुई है, उसको कहते हैं इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। व्लादिमीर लेनिन का ये कहना था। लेकिन इसके बाद डिपेंडेंसी थ्योरी के फर्दर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी के बेसिकली 2 स्कूल ऑफ थॉट्स निकले हैं इसमें से फर्दर, और एक उसमें से ये था कि डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर एक अमेरिकन स्कूल ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी, अमेरिकन स्कूल ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। अब अमेरिकन स्कूल ऑफ डिपेंडेंसी जो थ्योरी थी उसके अपने वेरिएशंस हैं। अमेरिकन स्कूल ऑफ डिपेंडेंसी, अब इसके मैंने आपको बताया कि दो डिपेंडेंसी थ्योरी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 फर्दर स्कूल ऑफ थॉट। एक अमेरिकन स्कूल ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी है, दूसरा लैटिन स्पेलिंग ऐसा ही कर लीजिएगा, अमेरिकन स्कूल ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। एक लैटिन अमेरिकन स्कूल है, एक और अमेरिकन स्कूल ऑफ लैटिन, और इनके अपने अपने वो हैं, क्या कहते हैं, प्रोपोनेंट्स हैं। वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो अमेरिकन स्कूल है, अमेरिकन स्कूल के अंदर हैं, इन लोगों के नाम लिख देता हूँ मैं आपको, आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। आंद्रे गंडर फ्रैंक मेन प्रोपोनेंट है अमेरिकन स्कूल ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी का। उसके बाद है पॉल सवीजे, और तीसरा बंदे का नाम है लुई आल्थुसर के अंदर पॉल सवीजे के बाद पॉल बैरन, PAUL, पॉल ए बैरन। और जो लैटिन अमेरिकन स्कूल है, इट इज फर्दर डिवाइडेड बाय, बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर। रॉल प्रीबिश है, उसके बाद एनिबल पिंटू, और इसके बाद सेल्सो फर्तादो, हेनरिक कार्डोसो वगैरह वगैरह। ये इंपॉर्टेंट लोग हैं डिपेंडेंसी थ्योरी के। लेकिन ये डिपेंडेंसी थ्योरी कहती क्या है? डिपेंडेंसी थ्योरी जो है ये, इसके अंदर मैंने जैसे बताया कि देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। एक है लैटिन अमेरिकन, दूसरा है अमेरिकन का है आंद्रे गंडर फ्रैंक, पॉल सवीजे, पॉल बैरन, और अमेरिकन के अंदर रॉल प्रीबिश, एनिबल पिंटू, सिल्सो फर्तादो, हेनरिक कार्डोसो हैं। ये इंपॉर्टेंट लोग हैं। अच्छा, एनीवे गाइस, अच्छा ये इन चीजों के साथ साथ अब हम देखते हैं ये कहती क्या है। जैसे कि मैंने बताया, डिपेंडेंसी थ्योरी इज हेवीली बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन से वो इन्फ्लुएंस थी। व्लादिमीर लेनिन का ये मानना था कि ये जो इंपीरियलिज्म है, imperialism is the highest stage of capitalism, and imperialism has divided the whole world into 2-tier structure. 2-tier structure के ऊपर डिवाइड कर दिया है। One is the core and the other is the periphery. बच्चों ये बातें समझ आ रही हैं मेरी? हेलो, हो गए सारे मुझे लग रहा। ओके गाइस, ओके सर आ रही है तो उनके रखें। अच्छा, गुड हो गया। अच्छा जी, अगली बात सुन लें जरा। क्या कह रहे थे कि अच्छा ये क्या कहता है कि अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ इंपीरियलिज्म, और इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के अंदर फर्क को पहले समझना है।
इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के अंदर फर्क ये है कि जो इंपीरियलिज्म होते हैं ये भी एक्सपेंशनिस्ट हैं, कॉलोनियल भी एक्सपेंशनिस्ट हैं। और जो इंपीरियलिस्ट हैं दे गो beyond their borders, and when they conquer a territory they merge that territory with their motherland. और जो colonials होते हैं they go beyond their border, they conquer a territory, they set up a puppet government over there and they govern that state through a distance, or they never merge that territory within their motherland. ये एक फर्क है। और कार्ल मार्क्स क्या कहता था, ये जो इंपीरियलिज्म है, इंपीरियलिज्म ने कैपिटलिज्म को पूरी दुनिया में फरोग दिया है। imperialism, इसलिए Vladimir Lenin was of the opinion that imperialism is the highest stage of capitalist development. कैपिटलिज्म ने इंपीरियलिज्म के एज के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस की है। तो इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, and Vladimir Lenin was of the opinion that this imperialism has divided the whole world into two tiers. One is the core कौन सी हैं? The haves, those who got wealth, those who are powerful, who are rich, and they have, और दूसरा है periphery. Periphery represents to the have-nots. The have-nots represent to the developing, underdeveloped country, poor countries, poor regions, poor society का section. ठीक है जी, ये दो चीजों के अंदर डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब याद रखिएगा डिपेंडेंसी थ्योरी वाज बेसिकली, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिपेंडेंसी जो थ्योरी थी, डिपेंडेंसी थ्योरी इधर करता हूं, डिपेंडेंसी थ्योरी वाज बेसिकली अ रिस्पांस टू द लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। Liberal modernization theory. Dependency theory was basically a response to the liberal modernization theory. अब liberal modernization theory जो है वो ये क्या, liberalism, liberal का जैसे मैंने आपको बताया था, ये they believe on the no less intervention of government into the economic activity. Modernization theory, liberal modernization के ये था कि through the trickle down effect and through the spillover effect, this whole world would be converted into a through the trickle down effect or through the spillover effect, क्या होगा, the rest of the world, they will become like us, they will become world, जो underdeveloped world है will become like us, वो हमारी तरह हो जाएंगे, like us मतलब हमारी तरह मॉडर्न हो जाएंगे। ये लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के मानने वालों का था, लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के मानने वालों का था कि हम ये जो दुनिया के अंदर वी आर मेकिंग प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस कर रहे हैं, एंड वी आर गिविंग टेक्नोलॉजी टू द रीजन्स which were involved in their traditional methods of production, उनको हम ये सारा कुछ दे रहे हैं, and with the passage of time they will become like us, वो हमारी तरह हो जाएंगे, मॉडर्न हो जाएंगे, एडवांस हो जाएंगे, पीसफुल हो जाएंगे। अच्छा, अब डिपेंडेंसी थ्योरी वालों का मानने वाला का ये है वो अच्छा, इसका अब ये जो लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है, लिबरल मॉडर्नाइजेशन जो थ्योरी है वो बेस करती है वाल्ट रोस्टोव का, एक वाल्ट रोस्टोव एक बंदा था जो लिबरल मॉडर्नाइजेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी था थ्योरी का। वो ये कहते थे कि किसी भी सोसाइटी की जो इकोनॉमी है वो 4 स्टेजेस के अंदर, 4 स्टेजेस के अंदर मूव करती है। किसी भी सोसाइटी, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो 4 स्टेजेस के ऊपर मूव करती है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एज आई टोल्ड यू, कि dependency theory was basically a response to the liberal modernization theory, and liberal modernization theory was of the opinion that through the trickle down effect and through the spillover effect the world will become like us, and Walt Rostow was of the opinion कि ये जो world economy है it passes through the 4 stages. Then ये ऐसा नहीं है कि you are going to embrace today, वो आज आप लोग हमें embrace करने जा रहे हैं, and the very next day you will become like us, ऐसा नहीं है। Walt Rostow का ये कहना था कि हर जो दुनिया की किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी है वो 4 स्टेजेस में होती है। सबसे पहले वो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, पुराने जमाने के दकियानुसी मोड ऑफ प्रोडक्शन चल रहे होते हैं, यानी कि घोड़ों से, गधों से और बुल से वो हल चला रहे होते हैं, और उस इतनी वो ट्रेडिशनल दकियानुसी प्रिमिटिव सोसाइटी होती है। उसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन ज्यादातर हंटिंग होती है, लोगों के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं होती, टेक्निक्स नहीं होती, वो हंटिंग के दौर के लोग हैं बेसिकली।
हंटिंग के ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये पहले स्टेज उसने बताया कि ये ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर बेस करती है और इसके अंदर मोड ऑफ प्रोडक्शन यूजुअली हंटिंग होता है। हंटिंग बात समझ आ रही है क्या होती है जी? हंटिंग होता है। ये प्रिमिटिव पहला स्टेज है किसी भी सोसाइटी का मूव करने का। दूसरी स्टेज वाल्ट रोस्टोव का ये कहना था कि सोसाइटी ट्रांजिशन में चले जाती है, ट्रांजिशनल सोसाइटी के अंदर चले जाती है। ट्रांजिशनल सोसाइटी के अंदर जो क्या होता है जी, ये इसके अंदर हाई मैस कंजम्पशन, यानी लोगों के पास पैसा आना शुरू करते हैं, हाई मैस कंजप्शन शुरू होती है, लोगों के पास पैसा आता है और ये थोड़ी सी एडवांसमेंट की तरफ जा रही होती है। ये सोसाइटी कहाँ जा रही होती है? एडवांसमेंट की तरफ जा रही होती है। सोसाइटी थोड़ी सी एडवांस होना शुरू होती है। तीसरी जो स्टेज थी उनका ये मानना था वाल्ट रोस्टोव का कि सोसाइटी टेक ऑफ में निकलती है। टेक ऑफ, सोसाइटी टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ के अंदर क्या होता है? सोसाइटी के अंदर अर्बनाइजेशन की तरफ जाती है। सोसाइटी अर्बनाइजेशन की तरफ जाती है और सोसाइटी के अंदर एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत आम हो जाती है और लोग प्रिमिटिव कल्चरल ट्रेडिशनल सोसाइटी से मूव करके शहरों की तरफ आते हैं और वो अर्बनाइजेशन की तरफ जाती है। ये तीसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज के बाद जो चौथी स्टेज है, व्हेन द कंट्री एंड द सोसाइटी इज नोन एज द डेवलप्ड सोसाइटी, इसको कहते हैं द ड्राइव टू टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी। इसमें आती है टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी, इसमें टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है और जो सोसाइटी होती है उसके अंदर मोड ऑफ प्रोडक्शन डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाते हैं? डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। वाल्ट रोस्टोव ये कहता था लिबरल मॉडर्नाइजेशन के तहत 4 स्टेजेस आएंगी एंड देन अल्टीमेटली दे विल बिकम लाइक अस। लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी वाज ऑफ द ओपिनियन कि ये जो कहते हैं थ्रू दीज स्टेजेस ये ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, ये बकवास करते हैं। दे आर मेकिंग ब्लफ, वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। Whatever the claims they are being made by liberal modernization theory, they are not verifiable. ये वेरीफाइबल नहीं है। रीजन क्या है? बल्कि ये तो अपने दुनिया में अपनी हेजमनी को, अपनी सप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं और ये नहीं बन सकते। अब इन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, within dependency theory there are 2 school of thought. One is the American school of thought and the other was the Latin American school of thought. Latin Americans वालों ने liberal modernization theory को criticize किया when they made research within their society and then they came up with their conclusion. वो अपने conclusion के जरिए आए, उसके अंदर they were of the opinion के the countries which were willing to embrace liberalism, जिन्होंने capitalism को embrace किया, उससे क्या हुआ? They become more poor than before. वो पहले से ज्यादा गरीब हो गए। एक बात, पहला कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि यानी जिन ममालिक, लैटिन अमेरिका के अंदर ये रिसर्च हुई, एनिबल पिल्टू, सेल्सो फर्दादो, हेनरी कॉल्डसो का कहना था जब हमने इन लोगों के बहानों के ऊपर आके, इन लोगों के नारों के अंदर आके हमने इसको एम्ब्रेस किया, व्हाट हैपेंड कि हमारी ये कंट्रीज और ज्यादा गरीब हो गए। एक बात हुई। और जब इन्होंने देखा कि बल्कि लैटिन अमेरिका की इकोनॉमी, जब उन्होंने इनको एम्ब्रेस नहीं किया था, वो ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस कर रही थी। जब उन्होंने कैपिटलिज्म को एम्ब्रेस नहीं किया था, वो दुनिया में ज्यादा बेहतर अंदाज के अंदर देवर मेकिंग प्रोग्रेस। 2 बातें। और तीसरी बातें वो ये थे, उनका ये मानना था कि ये द होल सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम इज जस्ट डिजाइन्ड टू गिव प्रॉफिट टू स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी। स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उन्होंने देने के लिए, ये अहमद अली बाज नहीं आएगा। ये अहमद अली कौन है? अहमद अली को बोलो जरा बंदे का पुत्र बने जरा। ओके राइट। तो वो उनका ये कहना था, दे वर ऑफ द ओपिनियन के ये सिस्टम सिर्फ क्या खास स्ट्रक्चर है, सोसाइटी के खास लोगों को प्रॉफिट देने के लिए बनाया गया है, ये हमारे जैसे लोगों को कोई फायदा नहीं होना। इसलिए लिबरल मॉडर्नाइजेशन जो थ्योरी है वो बकवास है, वो सारी की सारी बकवास थ्योरी है और इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए अब ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी के जो मानने वाले लोग हैं, दे आर ऑफ द ओपिनियन, वो ये कहते हैं कि ये इंपीरियलिज्म ने दुनिया को 2 स्ट्रक्चर में तकसीम किया, एक दी हैव्स हैं और दी हैव नॉट्स हैं, या द कोर है एंड द पेरिफेरी है। एंड पेरिफेरी इज कंटिन्यूअसली
helping the core to survive, and the core is surviving at the cost of the periphery. At the cost of periphery. Periphery say they are looting the raw material, they are getting low cost wages from the periphery, and this is how the core is continuously becoming powerful and the periphery is at the receiving end. वो बिल्कुल गरीब होता चला जा रहा है. तो गेट माय आइडिया गाइड, ये थी डिपेंडेंसी थ्योरी. यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई तो मुझसे अभी पूछिए गाइस. हेलो सर जी चलते हैं तो सर ये समझ नहीं आया कि ये लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है, ये डिपेंडेंसी थ्योरी इसके ऑपोजिट आई थी. लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी पहले आई थी, उसको क्रिटिसाइज किया डिपेंडेंसी थ्योरी ने. ठीक है, तो मैंने आपको तो डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर पहले समझाया कि लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या थी, फिर मैंने बताया डिपेंडेंसी थ्योरी ने इसको क्रिटिसाइज कैसे किया. ये गेट माय आइडिया. सर वो क्रिटिसाइज वाला रिपीट कर दें एक बार दोबारा. उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए थे. उन्होंने कहा था कि ये जब जिन स्टेट्स इनके बहानों के अंदर आके, इनके लारों के अंदर आके दे वर विलिंग टू एम्ब्रेस कैपिटलिज्म, तो वो ज्यादा गरीब हो गए. और जब कैपिटलिज्म के अंदर क्राइसिस था तो लैटिन अमेरिकन स्टेट्स ने ज्यादा प्रोग्रेस की. और बल्कि ये जो पूरा सिस्टम है, इट इज जस्ट टू फैसिलिटेट अ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी. ये कैपिटलिस्ट ये जो नॉर्थ को सपोर्ट कर सकता है, साउथ के लिए इसमें कुछ नहीं है. ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की? सही. ओके, 50 लोग आए हुए हैं अभी तक मेरे पास, 50 लोग. अच्छा जी, ये था पहला वेरिएशन जो मैंने आपको बताया. अब हम चलते हैं. सर एक क्वेश्चन है, ये जो आपने कोर और पेरिफेरी का बताया है, ये डिपेंडेंसी थ्योरी वाले कहते हैं ना कि इट्स डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन. डिपेंडेंसी थ्योरी वाले कहते हैं. ठीक है बेटा, ओके बेटा. अब आगे चलते हैं. दूसरा वेरिएशन, उसको कहते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी. वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी. वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का मेन बंदा था इमानुअल वॉलरस्टीन. यार बच्चे, मैं एक बात आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपकी इसके अंदर वो क्या कहते हैं क्वेश्चंस वगैरह नहीं करेंगे. सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं तुन के रखो. मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर समझ में नहीं आया तो तुन के रखो का क्या फायदा है. इसलिए आप लोग क्वेश्चंस करें जो बात समझ में नहीं आती, जैसे कि अभी एक बच्चे ने किया. अच्छा, इमानुअल वॉलरस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो थी, इमानुअल वॉलरस्टीन उसका मेन प्रोपोनेंट था. ये सेकंड वेरिएशन है. और इसका इमानुअल वॉलरस्टीन वाज ऑफ द ओपिनियन दिस कैपिटलिज्म हैज डिवाइडेड द होल वर्ल्ड इनटू 3 टियर्स. 3 टियर्स में तकसीम किया. पहला है कोर, दूसरा है पेरिफेरी, और तीसरा है कोर के बाद बीच में रखो सेमी पेरिफेरी, और तीसरा है पेरिफेरी. यू गेट में. अच्छा, डिपेंडेंसी ने दुनिया को कितने में तकसीम किया था? 2 में. 2 में. और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ने कितने में तकसीम किया दुनिया को? सर उसने 3 में. एक है कोर, एक है सेमी पेरिफेरी, और तीसरा है पेरिफेरी. ठीक है, यानी कि इमानुअल वॉलरस्टीन सेमी पेरिफेरी को लेकर आया. अब ये समझना बड़ी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है. इमानुअल वॉलरस्टीन का ये मानना था, इमानुअल वॉलरस्टीन ये कहता था कि कोर क्यों है? क्योंकि दे आर कंटिन्यूअसली गेटिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द पेरिफेरल स्टेट्स. और पेरिफेरल स्टेट इस वजह से पेरिफेरी में है बिकॉज देयर रिसोर्सेज, ये जो वहां उनके इलाकों में ब्रेन वॉश हो रहा है, माइंड ड्रेन हो रहा है, और वहां के अच्छे अच्छे लोग पेरिकोर लेके चले जाते हैं. और इंडस्ट्री जो है वो सारी की सारी कोर में लगी हुई है. पेरिफेरी में सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती हैं, वो उसको सारों को लेके जाके फिनिश प्रोडक्ट में तकसीम कर देता है, और पेरिफेरी को कुछ नहीं देता. कोर इसलिए मजबूत होता चला जा रहा है. मेरी बात समझ आ रही है? रिपीट कर दें. अच्छा, सुन ले जरा मेरी बात. Immanuel Wallerstein was of the opinion that capitalism has created the whole world, divided the whole world into 3 tiers. One is the core, other is the semi-periphery, and the third is the periphery. And periphery जो है, it is continuously providing raw material जो कि minerals की सूरत में है,
और बेहतरीन माइंड्स प्रोवाइड कर रही है जो कोर लेके चला जाता है और उससे वो यूटिलाइज करता है, और जो पेरिफेरी के पास अनस्किल्ड लेबर रह जाती है, ठीक है, और इनके पास ना कोई टेक्नोलॉजी होती है क्योंकि कोर सारा कुछ उनसे ले जाता है, ना उनके पास रिसोर्सेज होते हैं कि वो टेक्नोलॉजी को खरीद सकें। और जो पेरिफेरी है, और जो पेरिफेरी सेमी पेरिफेरी है, कहते हैं सेमी पेरिफेरी, ये यहां से इस बात को समझ लीजिएगा, ये मिक्स ऑफ प्रोडक्शन में, मिक्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। ये जो सेमी पेरिफेरी है, ये ना सिर्फ इज गोइंग टू प्रोटेक्ट कोर बट आल्सो हेल्पिंग द पेरिफेरी टू सस्टेन इटसेल्फ। तो सेमी पेरिफेरी जो है, सेमी पेरिफेरी जो है सेमी पेरिफेरी, ये ना सिर्फ कोर को प्रोटेक्शन दे रहे बल्कि सेमी पेरिफेरी को भी सस्टेन कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल देके बताता हूं कैसे। इमानुएल वॉलस्टीन ये कहता था कि डिपेंडेंसी थ्योरी वाज हैविंग अ फॉल्ट। फॉल्ट वाज द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू टियर्स। वन वाज द, कौन कह रहा है? इमानुएल वॉलस्टीन कह रहा है कि डिपेंडेंसी थ्योरी वाज हैविंग अ फॉल्ट because according to the dependency theory the world was divided into core and periphery. If core is continuously exploiting the resources of periphery, then ultimately the resources would be exhausted, periphery would not be having anything, and the periphery would be collapsed. And when nothing would be there for the core to sustain itself, ultimately core would be collapsed. And this is how the capitalist system would go into crisis, और फिर वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि कोर इज सस्टेनिंग इटसेल्फ, ना तो पेरिफेरी कोलैप्स कर रही है ना ही कोर कोलैप्स कर रहा है। तो इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये दोनों सस्टेन कर रहे हैं। तो इमानुएल वॉलस्टीन वाज ऑफ द ओपिनियन दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सेमी पेरिफेरी। ये सेमी पेरिफेरी की वजह से, सेमी पेरिफेरी ना सिर्फ कोर को सपोर्ट कर रहा है बल्कि पेरिफेरी को भी कोलैप्स करने से बचाता है। किस तरीके से? वो मिक्स ऑफ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 1970s के अंदर 1970 में F-16 बनाना शुरू किया। 1970 से लेकर आज 2020 आ गया, तकरीबन 40-50 साल हो गए F-16 को बनते हुए, ठीक है। अब अमेरिका बना रहा है F-22 बना रहा है। अमेरिका क्या बना रहा है? F-22 बना रहा है, F-35 बना रहा है। और वो जो पुरानी टेक्नोलॉजी है किसकी? F-16 की, वो दे रहा है सेमी पेरिफेरी को F-16 के लिहाज से। फॉर इंस्टेंस इंडिया के साथ अमेरिका ने डील की कि आपको अगर F-16 चाहिए तो आप हमसे ये टेक्नोलॉजी खरीद लें और अपने घर के अंदर खुद ही F-16 बनाएं और 200 अरब डॉलर या 300 अरब डॉलर की हमारे साथ डील कर लें। यानी कि अमेरिका ने अपने F-16 को भी बड़े हाई प्राइस के ऊपर बेचा। और ये जो सेमी पेरिफेरी, इंडिया सेमी पेरिफेरी में जो कि कोर को मसलसल सपोर्ट कर रहा है, मेरी बात समझ आ रही है? और जो कोर है वो अपनी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी दे देता है सेमी पेरिफेरी को। सेमी पेरिफेरी जो है वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है और कोर को सपोर्ट करता रहता है। और अमेरिका इंडिया से अपने मैन पावर्स को लेके जा रहा है, रिसोर्सेज को लेके जा रहा है और कोर सस्टेन कर रहा है। तो ये जो पेरिफेरी के जो लोग हैं, ये ना सिर्फ दे आर इन्वॉल्व इन द मिक्स ऑफ प्रोडक्शन, वो ना सिर्फ पेरिफेरी स्टेट्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है बल्कि कोर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि जापान हो गया, जैसा कि मलेशिया हो गया, जैसा कि आसियान कंट्रीज हो गए, साउथ कोरिया हो गया। ये कौन है? दे आर इन दी सेमी पेरिफेरी। ये सेमी पेरिफेरी में है जो कोर को सपोर्ट कर रहे हैं और पेरिफेरी भी कोलैप्स होने से बच रही है। तो दिस इज हाउ Immanuel Wallerstein was of the opinion that the capitalism has divided the whole world into three structures. One is the core, the other is the semi-periphery, and the third is the periphery. And the semi-periphery is involved in the mix of production. It is not only helping the periphery to sustain itself, but it is also helping the core to make progress further. बच्चों ये बात समझ आई है? सर पेरिफेरी कैसे सस्टेन हो रही है सेमी पेरिफेरी से? सेमी पेरिफेरी जो है वो रिसोर्सेस लेके कुछ अपने लोगों को भी, उनको जो सेमी पेरिफेरी की आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होती है वो पेरिफेरी में चले जाती है, ठीक है। वो पहले किससे हल चलाते थे? बुल से हल चलाते थे, अब उनको ट्रैक्टर दे दिए, ठीक है। लेकिन सेमी पेरिफेरी के पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। वो एक ही हेलीकॉप्टरों से, बड़ी बड़ी मशीनों से थ्रेशिंग करते हैं। हमारे यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहे हैं। और जो कोर है, कोर के पास एक्स्ट्रा पूरे एकर्स की से बड़ी जो स्प्रिंग टेक्नोलॉजी, पता नहीं कौन कौन सी आगे, वो अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो सेमी पेरिफेरी है वो पेरिफेरी को भी डूबने से बचा रही है बल्कि कोर को मजीद पावरफुल कर रही है। मेरी बात समझ आई?
यस सर। ओके, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? हेलो? जी सर हो रही है। ओके यस सर। अब आते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड के ऊपर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है पुत्र, जितना तुम्हारा दिमाग है ना सारा इस पे लगा दो इस चीज को समझने के लिए। ये था थर्ड वेरिएशन, स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ imperialism, structural by जॉन गाल्टोन। ये जॉन गाल्टोन ने स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ इंपीरियलिज्म। बच्चों दिमाग जरा सारी नसें खोल लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जॉन गाल्टन, इस चीज को जरा समझिए जरा। क्या कहता है जी? जॉन गाल्टन इज ऑफ द ओपिनियन, स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ इंपीरियलिज्म की बात कर रहा है, याद रखिएगा इंपीरियलिज्म की बात कर रहा है जो व्लादिमीर लेनिन ने कहा था। उसने कहा था, जरा गौर से सुनिएगा, उसका ये मानना था, John Galton is of the opinion the capitalism has imperialism and capitalism has divided the whole world into two tiers. Two tiers की बात पहले किसने की थी? दुनिया दो tiers में, डिपेंडेंसी थ्योरी ने, शाबाश, डिपेंडेंसी थ्योरी ने की थी। वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू टियर्स, दो टियर्स के अंदर दुनिया डिवाइडेड है। एक है कोर और एक है पेरिफेरी। अभी तक डिपेंडेंसी की तरह की लग रही है ना, लेकिन फर्क कहां पे है? जॉन गॉल्टन वाज ऑफ द ओपिनियन के हर कोर का एक अपना पेरिफेरी है और हर पेरिफेरी का अपना एक कोर है। हर कोर का एक पेरिफेरी है। मेरी बात समझ आ रही हो? हर कोर का एक क्या है? पेरिफेरी, और हर पेरिफेरी का एक कोर है। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये बात गौर से समझना है मेरी बात। यहां तक तो जॉन गॉल्टन वाज हैविंग वेरी सिमिलर व्यू विद रेफरेंस टू डिपेंडेंसी थ्योरी के ये जॉन गॉल्टन वाज ऑफ द ओपिनियन के द वर्ल्ड इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टियर्स। सो वाज द केस विद द डिपेंडेंसी थ्योरी के द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू टियर्स, but John Galton is of the opinion that the world is divided into core and periphery, but every core is having its periphery and every periphery is having its own core. मेरी बात समझ आई है? यानी कि पूरी दुनिया के अंदर दो किस्म के सिस्टम्स हैं, एक कोर है एक पेरिफेरी है। every core is having its periphery and every periphery is having its core। ठीक है, यहां तक कोई बात समझ में नहीं आई तो बताइए मुझे। नहीं सर, आगे जबरदस्त। यानी कि वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स, वन इज द कोर, द अदर इज द पेरिफेरी। एवरी कोर इज हैविंग इट्स पेरिफेरी, एवरी पेरिफेरी इज हैविंग इट्स कोर। ओके गाइस, अच्छा जी, अब अगली बात सुनेंगे। गौर से क्या कहते हैं, कहता हूं चल क्या रहा है। अब बच्चे जरा गौर से सुनना है आप लोगों ने। जॉन गाल्टन इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज अ डायरेक्ट हार्मनी बिटवीन द core of the core and the core of the periphery। समझ आई कि नहीं? नहीं सर, नहीं। क्या उसने बोला कि दुनिया के अंदर कितनी स्टेट्स हैं? दुनिया के कैसा सिस्टम है? कोर है, एक पेरिफेरी है। हर कोर का एक और एक पेरिफेरी है और हर पेरिफेरी का एक और एक पेरिफेरी है। ठीक है जी। दुनिया में कितने किस्म के सिस्टम्स हैं? दो किस्म के। तो मतलब क्या हुआ? कोर का अपना पेरिफेरी और पेरिफेरी का अपना कोर है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कोर का भी एक कोर है और पेरिफेरी का भी एक कोर है। समझ आई मेरी बात की? जी सर। अच्छा, तो वो क्या कहता है? देयर इज अ डायरेक्ट हार्मनी बिटवीन द कोर ऑफ द कोर एंड द कोर ऑफ द पेरिफेरी। हार्मनी है, यानी एलीट चाहे अमेरिका की हो या एलीट चाहे डेवलपिंग ममालिक की हो, उनकी लाइक माइंडेडनेस एक है। विद रेफरेंस टू देयर बिजनेस दे गॉट देयर सेम अप्रोच। ठीक है, तो डायरेक्ट हार्मनी है। लेकिन देयर इज अ डिसहार्मनी। अब अगली बात जरा यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देके बताता हूँ। कहता दुनिया वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू कोर एंड द पेरिफेरी,
जो कोर इज हैविंग, एक कोर में दुनिया तकसीम है और एक पेरिफेरी के अंदर है। कोर का अपना कोर और एंड पेरिफेरी है, और इसी तरीके से पेरिफेरी का अपना एक कोर पेरिफेरी है। अब क्या कह रहा है, देयर इज ए डायरेक्ट हार्मनी है between the core of the core and core of the periphery। ये जो जुमला समझ आया? There is a direct harmony between the core of the core and the core of the periphery, लेकिन there is a disharmony between the periphery of the core, periphery of the periphery। मेरी बात समझ आई? जी सर। नहीं आई? लेकिन समझा दें। उसने क्या कहा पर वो समझ नहीं है। हाँ, जरा गौर से देखें। दुनिया में क्या था, एक कोर है और एक पेरिफेरी है, ठीक है। कोर इज हैविंग इट्स ओन कोर एंड पेरिफेरी, पेरिफेरी इज हैविंग इट्स ओन कोर एंड पेरिफेरी। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? यहां तक तो ठीक है? यस सर। अब पहला उनका मैकेनिज्म क्या है? पहला मैकेनिज्म उनका क्या है? पहला मैकेनिज्म के अंदर वो कहता है, पहला मैकेनिज्म के अंदर उसका मानना ये है कि डायरेक्ट हार्मनी है बिटवीन द कोर ऑफ द कोर एंड द कोर ऑफ द पेरिफेरी, यानी कोर के जो कोर है और पेरिफेरी का जो कोर है, उन दोनों के दरमियान लाइक माइंडेडनेस है, देयर इज अ हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन होना ये चाहिए था जैसे कि कोर के कोर और कोर के पेरिफेरी, पेरिफेरी के कोर के अंदर हार्मनी है, तो वैसे ही हार्मनी होनी चाहिए थी बिटवीन दी पेरिफेरी ऑफ द कोर एंड द पेरिफेरी ऑफ द पेरिफेरी के दरमियान भी हार्मनी होनी चाहिए, लेकिन डिसहार्मनी है। यानी कि गरीबों के दरमियान, अमीरों के दरमियान तो हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन गरीबों के दरमियान हार्मनी नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, डिसहार्मनी है। ठीक है, अब अगली बात वो कहते हैं देयर इज मोर हार्मनी बिटवीन द कोर एंड पेरिफेरी of the and the periphery। हाँ जी, अब जरा देखो अगला मैकेनिज्म देखो जरा। कहता है जो कोर का जो कोर एंड पेरिफेरी है उसके अंदर मोर हार्मनी है देन द कोर एंड पेरिफेरी ऑफ द पेरिफेरी। समझ आई मेरी बात की? हेलो 48 लोग, वेयर आर यू? और समझ आ रही है कि नहीं? सारे गूंगे हो, बोल देंगे तुसी। आ रही है सर, समझ सर आ रही है। सर जी का किस्सा हो गया, आपकी बात ना आ रही है, समझ आ रही है। ओए सही कमाल करते हो सही। कौन बात कर रहा है सही? शक्ल तो बताओ, थोड़ी सी दिखाओ यार, थोड़ा सा। कोरोना आ गया सर। अच्छा, कोरोना अल्लाह सर को फ्लाइंग पपी। अच्छा, ओके गाइस, बस करो। ओके गाइस, किया गया। अब ये जो मैकेनिज्म है, अब ये अगली, अब दिमाग के जितने तुम्हारे खाने रह गए हैं ना, थोड़े से और भी खोल लो। अच्छा, दिमाग के खाने और खोल लो थोड़े से। सर रहने दो सर, खोल लीजिए सर, 2 मिनट रह गए, रहने तो बकवास बंद करा। 2 मिनट के बच्चे, ये तुझे पता है? अच्छा जी, आपको क्या पता? आपने सीजन देखा है कभी कोई? अब बहुत देखे, मैंने देखे सीजन। आगे आ जा। आप तो अपने घर के ड्रामे भी नहीं देखते होने। अच्छा भाई, अगले बात सुनो जरा। अच्छा, इनका मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन सुने जरा। मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन, ये दोनों वर्क कैसे करते हैं, ये जो कोर एंड पेरिफेरी के दरमियान? इट इज वर्किंग, पहला वो कहता है वर्टिकल मॉडल ऑफ इंटरेक्शन, वर्टिकल मॉडल ऑफ इंटरेक्शन, और दूसरा है हॉरिजॉन्टल मॉडल ऑफ
इंटरएक्शन जिसको वो फ्यूडल मॉडल ऑफ इंटरएक्शन एक्शन भी कहता है। यानी कि John Gordon's model of structural imperialism is working on two mechanisms of operationalization. One is the vertical model of interaction, the other is the horizontal model of interaction. Vertical model of जो interaction है, it is basically creating disparity. It is basically creating disparity in the state, disparity among the states. ये दुनिया के अंदर is creating disparity among the states. और ये जो है जो horizontal model of interaction or the feudal model of interaction is basically creating divide and rule. यानी कि vertical model of interaction means the gap between the riches of the richer and the poor is continuously increasing. सीजन आ गया, मैं जा रहा हूँ. Rich is getting richer and richer and poor is getting poorer and poorer. But on the other side, horizontal model of interaction के अंदर it is going to create inequality, divide. वो क्या करते हैं? वो गरीबों को आपस में हमेशा फ्यूडल मॉडल के तहत लड़ा के रखते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी यूनाइट नहीं हो सकते और जो कोर है वो कोर तरक्की करता जाता है और पेरिफेरी दुनिया में पीछे रहता चला जाता है. बच्चों, गाइस, vertical model of interaction, vertical interaction or horizontal model of interaction. Vertical model is creating disparity, horizontal model is creating divide and rule. The first mechanism is the major factor behind the inequality. Gap बढ़ता जा रहा है. And the second helps to reinforce this inequality. Divide and rule करके कभी भी एक दूसरे को अपने ऊपर नहीं, उसके बराबर नहीं आने देते. You get my idea, guys? समझ आ गई बच्चों? सर एक दफा वर्टिकल मॉडल ऑफ ये बता दें. बेटा, वर्टिकल मॉडल ऑफ इंटरेक्शन के अंदर the gap between the riches of the richer and the riches of the poor is continuously increasing. गरीब गरीब से गरीब तर और अमीर अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है. You get my idea? और ये इससे क्या क्रिएट, वर्टिकल मॉडल ऑफ इंटरेक्शन इज क्रिएटिंग डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी, और हॉरिजॉन्टल मॉडल इज बेसिकली बेस्ड ऑन द डिवाइड एंड रूल. तो वर्टिकल मॉडल की वजह से जो डिस इनइक्वालिटी पैदा हुई है और उसको दे दो और बस करो ओसामा, उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल मॉडल जो है वो इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इनइक्वालिटी को. बच्चों, ये बात समझ आ गई है? यस सर. बच्चों, अगर आ गई है तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने. अब आगे चलते हैं. सर जी सर, ये जरा डायरेक्ट हार्मनी और उसका थोड़े एग्जांपल के साथ समझा दो. हार्मनी का एग्जांपल के साथ समझा दूं? यानी कि कोर का, अमेरिका कोर है, इसका एक कोर है. अमेरिका के अंदर भी तो गरीब अमीर हैं ना? जी सर. अमेरिका का जो कोर है, अमेरिका एक कोर है और पाकिस्तान एक कोर है. ठीक है, तो पाकिस्तान एक पेरिफेरी है. मेरी बात समझ आ गई? अब अमेरिका का जो कोर है वो अमीर तबका है और अमेरिका का जो पेरिफेरी है वो गरीब तबका है. अब पाकिस्तान एक पेरिफेरी है, पाकिस्तान का जो कोर है वो अमीर तबका है, पाकिस्तान का जो पेरिफेरी है वो गरीब तबका है. अब अमेरिका के अमीर तबके और पाकिस्तान के अमीर तबके के दरमियान हार्मनी डायरेक्ट है. जी सर. लेकिन अमेरिका के गरीब और पाकिस्तान के गरीब के दरमियान डिसहार्मनी है. ठीक है, वो मतलब कैसे? यानी कि गरीब बेचारा हमेशा लड़ता फिरता है, वो उसको अपनी पड़ी रहती है ना. जी सर. तो कहता दफा मारा दूजिया दे कमा च की टांगण आनी, बच्चों वास्ते रोटी लेके जाइए, रात में जाना है यार. और अगर अमेरिका का गरीब कहता हो पाकिस्तानियों उठो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ इंकलाब लेकर आओ, तो पाकिस्तानी गरीब कहता जाने भाड़ में, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम दिहाड़ीबाज लोग हैं, सुबह दिहाड़ी करते हैं, रात को 800-900 हजार रुपया घर लेके जाते हैं, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं. आप कहते हो नौकरी छोड़ दो, आप कहते हो रेवोल्यूशन पे जाओ, आप कहते हो काम छोड़ दो. ये हो सकता है? पागल हो तुम लोग? आई समझ मेरी बात की? जी सर, सही हो गई. हाँ, चलो मेरे पुत्रों, अब आगे चलते हैं. डिपेंडेंसी थ्योरी का हो गया. अच्छा,
अब मेरी पुत्रों ये जो सारी चीजें हैं ना, अब मैं आप लोगों से अब डिस्कस करने लगा हूँ कि मिड टर्म एग्जाम आ रहा है। अगले क्लास में इंशाल्लाह मैंने थीम्स आप लोगों को पढ़ा देने हैं। मिड टर्म एग्जाम्स में हमारे जो 3 थ्योरीज शामिल होंगी, ये 3 किस्म के मॉडल्स अभी तक लिए जा रहे हैं कि आप लोगों को असाइनमेंट्स दे दी जाएं मिड टर्म की जगह पे 30 मार्क्स की, तौबा करें सर। 30 मार्क्स की ले ली जाए आपसे असाइनमेंट्स, यानी कि आर्टिकल दें आपको कोई 4-5 हजार वर्ड का या 10,000 वर्ड का, और आपको 1 वीक का टाइम दिया जाए और उसके अंदर थ्योरी एप्लीकेशन, थ्योरी मॉडल, आरक्यू, मेथोडोलॉजी वगैरह आप लोग, मेथोडोलॉजी तो खैर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो ना लगाएं, अलबत्ता ये थ्योरी को लगाएं, उसको पूरा एक आर्टिकल जनरेट करें, आर्टिकल, और उस आर्टिकल को आप सबमिट करें और उसके ऊपर आपकी असेसमेंट हो। और इसके ये जो 30 मार्क्स हैं इसमें यानी असाइनमेंट है उसके 4-5 हिस्से होंगे और हर 4-5 हिस्सों का एक, और फिर 30 मार्क्स में 10 नंबर का इसी तरीके से एक सेशन होगा। उस सेशन के अंदर हर बंदा अपने उस आर्टिकल को डिफेंड करेगा, तो प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी। बच्चों मेरी बात समझ आइए? जी सर। एक ये मॉडल है। दूसरा मॉडल क्या है? दूसरा मॉडल ये है कि आप लोगों को जिस तरीके से 10 सवाल देता हूं मैं, 10 मिनट दूंगा आपको ऑनलाइन, सॉफ्टवेयर के जरिए मैं आप लोगों को अटैच कर दूं। 30 नंबर है, आधा घंटा है आपके पास, 30 सवाल होंगे और उसको आपने हल करके मुझे भेजना है। एमसीक्यूज? नहीं, शॉर्ट क्वेश्चंस। 30 मिनट तो कम है सर। कैसे करेंगे सर। सर? वो टाइम इसके मेथोडोलॉजी के अंदर ये है कि जो टाइम के अंदर, चलो वो कहते हैं, मैं कह के उनको कह लूंगा 45 मिनट कर लो। सर 45 मिनट भी कम है, 30 सर। क्वेश्चन है। नहीं होते सर। बेटा मेरी सर बात सुन। टाइपिंग स्पीड सर कुछ बच्चों की अच्छी होती है, कुछ की सर, नहीं होती, जो नहीं टाइप कर सकते। हाथ से तो राइट कर सकते ये हैं लेकिन फिजिबल टाइपिंग नहीं है, स्पीड तो नहीं होती ये ना सबकी फिजिबल बराबर। नहीं है। वो हमने कोई आपसे बेटा पैराग्राफ नहीं लिखवाने, वो 1-1 या 1.5-1.5 2-2 लाइनें मैक्सिमम हमने लिखवाने। सर फिर भी वो तो आगे मतलब पेपर पे लिखते थे फिर आधा घंटा हो जाता था, किसी बच्चों की स्पीड होती ही नहीं है, अच्छा, प्रैक्टिस ही नहीं और होती। तीसरी बात ये है, तीसरा मॉडल ये है कि ये अभी तक प्रपोज हो रहा है ना, मैं आप लोगों से इसीलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। 48 लोग जो मेरे ऑनलाइन हैं, मैं उनसे इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोग मुझसे देख लें आपको कौन सा मॉडल सूट करता है। तीसरा है ओपन बुक। ओपन बुक के अंदर ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं दुनिया की कोई भी टेक्स्ट दे दूंगा आपको, कोई भी एक टेक्स्ट, यानी कि अगर 60 बच्चे हैं तो 6 टेक्स्ट दे दूंगा, 10 बच्चों को एक टेक्स्ट। उस टेक्स्ट को आप लोगों ने पढ़ना है 2 घंटे में और उसके आपने आंसर्स निकालने हैं। मतलब कि एक बुक दी है अगर मैंने आपको IR थ्योरी के ऊपर तक किसी भी एक प्रोफेसर की, ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, ठीक है, लेकिन थ्योरी वही है जो मैंने आपको पढ़ाई है। अब उसके टेक्स्ट में से आपने इंप्लाइड मीनिंग्स निकालने, क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, बुक भी मैं आपको दे दूंगा। सर मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने ना। फिर उस बुक को आपने पढ़ना है और उसके आंसर्स निकालने हैं, उसके आंसर्स निकालने हैं आपने। सर हाँ थोड़ा हल्का रखें। यानी मैंने आप लोगों को इसलिए आज ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोगों सर ये जो सेकंड वाला मेथड है इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन आप हमें वही देंगे जो आपने हमें पढ़ाया है लेक्चर्स में? नहीं, टेक्स्ट बुक से ही लूंगा मैं। मतलब वो जो ये जो सेकंड वाला मेथड है इसमें 30 क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट बुक्स में से ही आएंगे और जो आपने पढ़ाया लेक्चर्स वही? हाँ जी, हाँ जी। तो सर अगर आप उसका टाइम 1 घंटा कर दें तो वो वाला मेथड अच्छा है।
वो लेकिन बेटा वो आप लोगों को ना सॉफ्टवेयर के जरिए आप लोगों ने अपनी सारी जो स्क्रीन से ना शेयर करनी है और वो रिकॉर्डिंग होनी है आपकी, क्योंकि वो कंट्रोल एग्जाम उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है ताकि बच्चों को चीटिंग से रोका जा सके। मेरी बात सुन रहे हो आप? यानी कि आप सब लोगों के इंटरफेस ओपन होंगे और रिकॉर्ड ये जो इन्होंने सॉफ्टवेयर खरीदा है उसमें आप लोग भी अपनी रिकॉर्डिंग लगाओगे, उस रिकॉर्डिंग का वो एनालिसिस होना है। तो वो थोड़ा सा मुझे ना आप लोगों के लिए मुश्किल लगता है। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੂम नहीं चलता सर सॉफ्टवेयर मेरा एक सवाल है सर। हाँ जी पूछो पुत्र। सर बाहर लॉकडाउन है सर, हाँ घर मेरा इतना ऊंचा है नहीं सर,